गैस बिफोर स्टार्टिंग सेशन कुछ दिखाना है आपको। क्योंकि आपको मतलब आइडिया आ ही जाएगा कि हाँ भाई सेशन किस बारे में होगा। ओके, वॉइस नहीं आ रही है। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग नहीं लगाती। आपको जितने पैसे आ रहे हैं, मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है एक्चुअली। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए। और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग नहीं लगाती। He said, learn to work harder on yourself than you do on your job. That was it. The beginning of the philosophy that helped to change my life. Work harder on yourself than you do on your job. When he said that, I suddenly understood why I was broke. I was a hard worker on my job. If anybody would have asked me, age 25, Mr. Roney, you a hard worker? I'd have said, yes, I'm a hard worker. Check my record. I work as hard as anybody. And that was true. I was a hard worker. I really was. But see, that was my problem. I was working hard on my job, but I wasn't working hard on myself. And that was my reason for lack of progress. Some people look for more money, but they look for it in the wrong direction. The guy says, I need more money, I'm going to go work on my boss. Well, number one, bosses are notorious. They do not play fast and loose with the company till. I've never seen a boss get excited and triple somebody's wages, right? I mean, they don't behave in such an irrational manner. So see, that's not what you work on. Some people say, well, I'll go on strike for more. Well, big deal. The problem with that game is, once you start it, it's never over. You'll always have to strike. And I'll tell you what you get by demand. Little bitty pieces. Barely enough. And now inflation beats that game. Right? The guy demands 10%. Inflation's 12. He's behind 2. Right? I mean, it never ends. So see, that's not the key to success. Maybe survival, but not success. The guy in sales says, I've got it. I'll get me some of those books that teach you the tricky sales. And I'll go leap upon my prospects, dazzle them with my sales footwork, grab their money before they know what's happened. Well, you can play those kind of tricks if you want to. My observation shows the last 24 years, you wind up at the bottom of the economic ladder, not the top.
See, it's not what you get by tricks. सो गाइज आपको वैसे दो वीडियो तक के समझ में आ गया मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ओके, दोनों ने कहा है कि हाँ भाई, मतलब दो ऐसे तो सैंपल दिखाए मैंने आपको, लेकिन बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपने देखे ही होंगे अब तक, कि भाई खुद पर काम करना कितना ज़रूरी है। राइट। तो ये मतलब ये वीडियो का बोल सकते हैं सारांश था कि हाँ भाई, खुद पर काम करो तभी अर्निंग बढ़ेगी। नहीं तो बस आप जो जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस पर ही बस उस पर काम करते रहे, खुद पर काम नहीं करते रहे, तो बस आपका दो टाइम का खाना पीना हो जाएगा, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बना पाओगे। ओके, लाइफ में कुछ अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमने देखा अभी। ओके, और भी कुछ शेयर करना है आपसे मुझे? तो जैसे मतलब हर सेशन का हमारा टारगेट यही रहता है कि हाँ भाई, खुद पर काम करना हम देखते हैं कि हाँ भाई, खुद पर स्किल क्या क्या डेवलप किया जाए। ओके, तो आज का सेशन का भी वही एजेंडा है कि हाँ भाई, If you खुद को क्या really डेवलप want कर to get सकते हैं। selected, if you really want to improve yourself in this world, तो आपके पास रीडिंग हैबिट होनी और उसको रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। जो जीवन में आगे बढ़ता है क्या उसको ज्ञान होता है? आवाज नहीं आ रही है? Yes or if you really want to get selected, if you really want to improve yourself in this world, तो आपके पास रीडिंग हैबिट होनी और उसको रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। जो जीवन में आगे बढ़ता है क्या उसको ज्ञान होता है? आवाज नहीं आ रही है? Yes or if you really 85% of the millionaires and billionaires in the world are first generation. 85%. Only 15% is coming from inheritance. So they were asked, how did you achieve such financial success in such a short time? And the answer was, we read books. How many books? 50 books a year. That means one book a week. Now, important thing is, they were asked, what kind of books do you read? They said, we don't read fiction. We don't have time to waste. We read only self-help books. Why? It says one good idea is worth $1 million. And the question is, how many ideas do we need to succeed in life? All it takes is one. What does it show? There's a connection between learning and earning. Learn more, earn more. 80 मेरे को बर्नआउट सा फील होता है। कभी कभी लगता है कि यार यार स्ट्रेस आ रहा है या फिर कुछ नया नहीं सीख पा रहा हूँ, तो फिर बुक्स पढ़ने लगता हूँ। जब बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में फिर नए नए थॉट्स उत्पन्न होने लगते हैं चीज़ों को लेके, और अलग एक पर्सपेक्टिव मिलता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो बुक्स मेरे लिए बहुत अच्छा फील देता है, अच्छा फीलिंग दिलाता है। और बुक्स पढ़ना शुरू किया था मैंने 2018 से, उसके पहले मैं बुक्स नहीं पढ़ता था। हाँ, और 18 से भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था बाहर के, तो वो लोग बोलते थे कि बुक्स वगैरह पढ़ने से क्या होता है कि आप किसी के बारे में, जो भी ऑथर लिखा है उसने अपने 30-40 साल का एक्सपीरियंस लिखा है उस बुक में, तो आपको वो एक बुक में 30-40 साल का एक्सपीरियंस आपको जानने मिल जाता है। मतलब आप जितने दिन में भी बुक खत्म करते हो, 30-40 साल का निचोड़ आपको मिल गया। आप सभी ने किसी ना किसी फॉर्म में डोंकी की स्टोरी तो सुनी ही होगी, कैसे कैरेट और स्टिक का यूज करके डोंकी से काम करवाया जाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोंकी इस ट्रैप में फंसता कैसे है? अब जरा डोंकी के पर्सपेक्टिव को देखिए। उसकी दुनिया लिमिटेड है बस उस गाजर तक, और अगर उसे अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझना तो उसे जरूरत है इस पिक्चर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की, जो कि उसके पास नहीं है, और वो चला जा रहा है उसी डायरेक्शन में जहाँ कैरेट उसे ले जा रही है। मेरे यहाँ पे अक्सर एक कहावत को यूज किया जाता है, या तो कर गया या पड़ गया। मतलब ये कि या तो आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करके सीख सकते हो, गलती कर सकते हो और इवेंचुअली उससे सीख सकते हो, लेकिन ये मेथड हमेशा एफिशिएंट नहीं होता, और टाइम लिमिटेड है, तो हमारे पास गलती करने और उनसे सीखने का स्कोप भी लिमिटेड है। या फिर आप यूज कर सकते हैं दूसरा तरीका, जिसमें आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। काम तो आपको फिर भी इवेंचुअली करना ही होगा, लेकिन अब आपके पास होगी वो चीज जो डोंकी के पास नहीं है, पर्सपेक्टिव। तो लाइफ में इसी पर्सपेक्टिव को गेन करने के लिए हमें पढ़नी चाहिए बुक्स। आप सब यस गाइस, तो ये कुछ ही शॉर्ट्स से आपको दिखाया मैंने, लेकिन पूरा सेशन उसमें डालूंगा नहीं, मैं शॉर्ट दिखाता रहूंगा आपको, ऐसा नहीं है। ओके। यस। चैट अलाउ करने का ऑप्शन प्रिया जी नहीं दिख रहा है मुझे वैसे। ठीक है, सेशन कंटिन्यू करते हैं गाइस। कोई आपको क्वेरी हो तो ही चैट में मेंशन कीजिएगा। ओके। यस।
यस गाइस, तो हमने जो दो मतलब बहुत सारे भी शॉर्ट्स देखे, तो गाइस शॉर्ट्स का वही था मतलब एजेंडा कि हाँ भाई एक तो खुद पर काम करना है, जो हम हर सेशन में देखते ही कि एंड में खुद पर काम करना, आपको खुद डेवलप होगा तो ही बिजनेस डेवलप होगा। ओके, आपको ये देखना नहीं कि हाँ भाई फॉरवर्ड में और क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ओके, उसको देखने के लिए कंपनी है, कंपनी का सीईओ है, ओनर है, सब सबको ही है। ओके, तो आपको खुद पर काम करना है, तभी मतलब बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। ओके, यस। तो गाइज आप स्क्रीन देख पा रहे हो राइट? तो ये जो मैंने कुछ स्लाइड आपके लिए रेडी किया है आज के लिए। ओके, तो कोई हैंड रेस कर सकता है कि स्क्रीन देख पा रहा है कि नहीं? अभिषेक स्क्रीन देख पा रहे हो? यस यस बिल्कुल, ओके, थैंक यू वेल, यस। यस गाइस, तो ये रीडिंग का हैबिट जो है, मैं मतलब चाहता था कि हाँ भाई टीम में, ये बहुत टाइम से चाहता था मैं कि हाँ भाई रीडिंग का हैबिट भी टीम में डेवलप करना चाहिए, ताकि पर्सनली मतलब आप लोग ग्रो कर पाओ। ओके, और ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो होता रहेगा। ओके, जैसे अभिषेक ने पूछा कि हाँ भाई दिन भर मतलब वो वीडियो बना रहे हैं, एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या कर सकते हैं ओके बिजनेस के लिए। ओके, तो गाइज मतलब रीडिंग का एक्टिविटी जो है राइट, अगर वो भी आप स्टार्ट करो तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में क्लैरिटी मिलती रहेगी। ओके, उसके बेनिफिट्स क्या है वो तो आप बाय डिफॉल्ट जानते ही हो। ओके, और मतलब आज भी आपको कुछ देखने मिलेगा कि हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस में ये रीडिंग का हैबिट जो है कितना मतलब यूज़फुल है। ओके, और मतलब ये कौन से स्किल्स अपने को चाहिए होते हैं फॉर डेवलपिंग दिस बिजनेस। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे टीम में हम क्या करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं राइट? तो कंटेंट मार्केटिंग में भी रीडिंग बुक्स कितना यूज़फुल होता है। ओके, ये आपको मतलब आज के सेशन में मतलब एंड तक क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो मेरा एजेंडा आज का यही है कि हाँ भाई योर बिजनेस विल ओनली ग्रो एज फास्ट यू ग्रो। ओके, एज अ पर्सन आपको डेवलप होना है, तभी आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होना है। ओके, जब आप अगर एएस लेवल पे हो तो जब आप सुपरवाइजर की तरह मतलब काम करने लगोगे, सुपरवाइजर की तरह आपका माइंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका लेवल फॉरएवर के आपके मोबाइल ऐप में दिख जाएगा कि सुपरवाइजर आप बन गए हो। ओके, ये सिमिलरली फॉर मैनेजर के लिए भी और मैनेजर के अबाउ सेशंस के लिए भी। ओके, अबाउ लेवल्स के लिए भी। सो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो गाइस बेसिक जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो आप सभी लोग मतलब बाय डिफॉल्ट जानते ही हो कि हाँ भाई स्किल्स, ये बेसिक स्किल्स होता है। जो कोई अगर फिर भी कोई फ्रेशर है, इसके नेटवर्क मार्केटिंग बोले कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्या क्या स्किल चाहिए होते हैं मुझे सीखना चाहिए। ओके, तो बाय डिफॉल्ट भले ही आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आपको ये स्किल्स चाहिए होते हैं। ओके, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, कि हाँ भाई एक तो लोगों से मिलो और लोगों से कनेक्ट करो। ओके, तो ये कैसे किया जाता है? ओके, किस तरीके से किया जाता है? बहुत लोग शाय होते हैं, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग उनको लगता है कि हाँ भाई कैसे, मैं कैसे करूँगा। ओके, तो मैं तो घर से बाहर निकला नहीं आज तक। ओके, तो कैसे होगा? तो प्रोस्पेक्टिंग ये स्किल जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूरी होता है। ओके, देन होता है इनवाइटिंग। ओके, प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कैसे करना है? ओके, बिजनेस का वीडियो दिखा के या फिर कॉल पे कैसे इनवाइट करना है? ओके, ज़्यादा पुशी नहीं होना है कि हाँ भाई प्लीज़ आ जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं, तो वो इन्वाइटिंग स्किल्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, एंड देन प्रेजेंटेशन। तो जो हम मतलब ट्रेडिशनल वे हो या फिर ऑनलाइन तरीका हो, हम ट्रेडिशनल देते हैं कि हाँ भाई चलो ये बिजनेस का प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, ये लेवल है वो लेवल है, अर्निंग ऐसा होगा वैसा होगा, हम पीपीटी देते हैं राइट? वन टू वन सेशन भी देते हैं हम, उसमें क्या है हम प्रेजेंट ही करते हैं। देन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो बोलता है कि सर पैसे तो नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, सर मेरे पास तो पैसा है नहीं। ओके सर, प्रोडक्ट तो महंगे है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन देता है वो, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए भी अपने को मतलब स्किल्स होने चाहिए कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शन का हैंडल कैसे करें। ओके, जो हम मतलब डेली टीएलएफ की मीटिंग में भी सीख रहे हैं। एंड देन फॉलोअप, फॉलोअप भी एक बहुत बड़ा स्किल है, आप सब जानते हो। ओके, क्योंकि आप जो प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हो फॉलोअप नहीं लोगे तो वो प्रॉस्पेक्ट गुम जाएगा मार्केट में। ओके, देन क्लोजिंग, क्लोजिंग का भी बहुत बड़ा स्किल है। ओके, तो आप जिससे बात कर रहे हो कि हाँ भाई वो क्लोज होना जरूरी है, क्लोजिंग नहीं होगी तो मतलब बाकी आपने जो भी किया है वो सारा वेस्ट जाएगा राइट? क्लोजिंग होगी तो ही ज्वाइनिंग होगी, तो ही मतलब बिजनेस में कुछ ना कुछ अर्निंग होगी आपकी। देन है डुप्लीकेशन एंड टीम बिल्डिंग, आपकी एक बार टीम बिल्ड होना चालू हो गई, आपका सुपरवाइजर लेवल निकला, मैनेजर लेवल निकला, आपकी टीम में 15 20 40 100 लोग आ गए, तो वो टीम को डुप्लीकेट कैसे करना है और भी। ओके, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको और भी स्ट्रांग कैसे बिल्ड करना है, बेस कैसे स्ट्रांग करना है, ताकि आपका टीम टूटे ना। जो बाकी टीम्स में प्रॉब्लम दिखे हम देखते हैं यूजुअली कि सर मैं सुपरवाइजर लेवल पे था लेकिन टीम टूट गई, सर मैनेजर लेवल पे था मैं लेकिन टीम ही टूट गई। ओके, अपलाइन ने कुछ कर दिया टीम टूट गई राइट? तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये स्किल्स भी आपको आना चाहिए कि हाँ भाई टीम बिल्डिंग कैसे होती है। ओके, देन सेल्फ डिसिप्लिन एंड रूटीन, जिसमें हम सब लोग मार खाते हैं बहुत बार कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, सर गैप पड़ गया, सर 2 दिन गैप था लेकिन अभी तो 20 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है। ओके, देन सोशल मीडिया बेसिक्स, गाइस बेसिक्स तो आपको मतलब हम यहाँ पे सीखते हैं टीएलएफ में कि आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पर और कोरा पे कैसे काम करना है राइट? और अलॉन्ग विद दैट माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी, ये माइंडसेट जो है ये मतलब हर कोई जानता है कि आपका माइंडसेट डेवलप होगा तो ही आप बिजनेस में ग्रो करोगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है आपको ना स्कूल में मिलता है पढ़ाया जाता है, ना आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना आपको कोई जॉब में मिलता है ये बिजनेस राइट? ये बिजनेस अलग ही मतलब दुनिया है इसकी। ओके, जिसमें आपको ये सारे स्किल्स चाहिए होते हैं। ओके, तो इसमें खुद को मोटिवेट रखना ओके ज़रूरी होता है। तो ये सारे स्किल्स जो है ये बेसिक स्किल्स है, इस पर आपको धीरे धीरे करके आप बाय डिफ़ॉल्ट काम करते ही हो। ओके,
तो आप जब टीम में आते हो, अपलाइन से कुछ सीखते हो, टीम मीटिंग से कुछ सीखते हो या खुद से कुछ सीखते हो, आपको समझ में आता ही है, राइट। अभी ये स्किल्स के बाद गाइज हम काम करते हैं कंटेंट मार्केटिंग पर। टीएलएफ में हम काम करते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कंटेंट कैसे बनाया जाए, लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। ओके, अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं हम। ओके, पुल मार्केटिंग करते हैं। तो उसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, ये कुछ बेसिक स्किल्स है। ओके, सबसे पहले है कंटेंट प्लानिंग। ओके, क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है। ओके, मंथली कैलेंडर होना चाहिए। तो कंटेंट प्लानिंग सभी लोग करते हैं। अभी आई थिंक किसी से बात हो रही थी जिनका एग्जाम है अभी। ओके, तो प्रॉपर प्लान क्या होना कि हाँ भाई एग्जाम के बाद ही पोस्ट करेंगे, राइट। अभी पोस्ट करके मतलब नहीं है, गैप पड़ जाएगा वापस, राइट। तो प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। देन कॉपी राइटिंग। गाइस, कॉपी राइटिंग मतलब कैप्शंस में क्या लिखना चाहिए, थंबनेल के ऊपर क्या लिखना चाहिए, टाइटल में क्या लिखना चाहिए। ये कॉपी राइटिंग बहुत बड़ा स्किल है। ओके, जो आप सबको मतलब थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना चाहिए कि कॉपी राइटिंग कैसे किया जाए। ओके, थंबनेल के ऊपर कुछ अच्छा लिखा होगा तो ही लोग क्लिक करते हैं, तो ये आपका सीटीआर बढ़ता है, भले ही वो शॉर्ट वीडियो हो, इंस्टाग्राम का रील हो या फिर लॉन्ग वीडियो आपका हो। थंबनेल पर अच्छा कुछ लिखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, अट्रैक्टिव लिखा होगा, तो ही मतलब क्लिक होगा वो वीडियो और तो ही लोग देखेंगे। ओके, तो ही आपको लीड मिलने वाली है। तो कॉपी राइटिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। देन है स्टोरी टेलिंग। आप जो वीडियो बना रहे हो वो वायरल कब होगी, जब वो लोग वीडियो जो है पूरा वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो कब देखेंगे, जब उनको दिख रहा है कुछ कहानी है, हाँ भाई अभी क्या, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, राइट। तो वैसा कुछ कहानी की तरह आपने कुछ पॉइंट्स बोले, राइट, तो मतलब लोग वीडियो पर चिपके रहते हैं। ओके, एंड तक हुक रहते हैं वीडियो के लिए। ओके, स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छा स्किल है, आपको मतलब फॉर श्योर डेवलप करना चाहिए। देन सोशल मीडिया बेसिक्स कि हाँ भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का बेसिक क्या है। आप फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हो वीडियोस, उसका बेसिक क्या है, उसका रेशियो अलग होता है, उसका म्यूजिक अलग होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ आपको मतलब पता होनी चाहिए। देन डिजाइनिंग ग्राफिक्स, भाई कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्लीन कितना होना चाहिए थंबनेल अपना, आई कैचिंग पोस्टर कैसे बनाना चाहिए, ये हम कैनवा पे सीखते हैं यूजुअली, राइट। देन वीडियो क्रिएशन, इसके ऊपर तो बहुत सी हम लेते हैं यूट्यूब पर कि वीडियो कैसे बनाया जाए, कैनवा पर कैसे बनाना है, वीएन ऐप कैसे यूज़ करना है, मोबाइल के लिए काइन मास्टर कैसे यूज़ करना है। तो ये बेसिक बेसिक स्किल्स है, राइट, जो हम मतलब सीखते हैं। और जो लोग मतलब नए भी है, आप धीरे धीरे करके ये स्किल्स सीख जाओगे। टीएलएफ के मीटिंग में रोज आना है, अपलाइन से पूछना है और खुद से एक्टिविटी लेना है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है अगर किसी में अटके तो। ओके, आपको यूट्यूब पर इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। देन है एसईओ बेसिक्स कि भाई कीवर्ड कौन से यूज़ करना है। ओके, कौन से हैशटैग यूज़ करना है, कितने हैशटैग यूज़ करना है। तो ये होता है एसईओ बेसिक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका वीडियो टॉप में आए। ओके, तो इसका बेसिक आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपको डिटेल में जाना है, साइंस बनना है, साइंटिफिक उसका आपको साइंटिस्ट बनना है, वो नहीं करना है आपको। आपको एकदम एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स भी आपको आ गया, दैट इज इनफ। ओके, आपको रैंक करना है गूगल पर, जीएमबी पर रैंक करना है, उसके लिए भी एसईओ काम करेगा, यूट्यूब पर भी एसईओ काम करेगा, इंस्टाग्राम के लिए भी हैशटैग्स काम करेंगे। देन लीड जनरेशन, उसके लिए तो हमारा टीएलएफ इन्वेस्टर्स भी है। एंड देन हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लीड जनरेशन ही करते हैं। ओके, कॉल टू एक्शन दे के, ओके, हर वीडियो के एंड में बोलते हैं हम कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो नंबर पे कॉल करो या फिर लिंक पे क्लिक करो, वो होता है कॉल टू एक्शन, उससे हम लीड जनरेट करते हैं। एंड देन होता है एनालिटिक्स ट्रैकिंग, कि वीडियो जो अपलोड किया है वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, हम एनालिटिक्स देखते हैं यूट्यूब पर। ओके, उस पर भाई हम कम बात करते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा स्किल है। अगर आप वो देखो कि हाँ भाई एसईओ स्कोर क्या है, बहुत बार लोग देखते हैं कि एसईओ स्कोर कितना हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, 90 हुआ, 50 हुआ, 30 हुआ, तो क्या क्या किया जाए, कौन से कीवर्ड्स चेंज किया जाए। ओके, कीवर्ड्स रैंकिंग वाले डाले हैं कि नहीं, राइट। तो वो होता है एनालिटिक्स। एंड देन है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ओके, कंटेंट मार्केटिंग के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। ओके, उसके बिना आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, अगर 2-4 महीने बनाओगे बाद में छोड़ दोगे तो मतलब वो 2-4 महीने भी आपके काम नहीं आएंगे इतने। ओके, तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है और यही हम मतलब टीएलएफ में हमेशा फोकस करते ही है। तो गाइस, ये दो बेसिक स्किल्स है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग वाली और कंटेंट मार्केटिंग वाली। ओके, भले ही आप ट्रेडिशनल में करो, ओके, तो आपको या फिर ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करो तो आपको ये स्किल्स भी चाहिए। ओके, तो ये स्किल्स आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होती है। तो आप जब ज्वाइन कर रहे हो, किसी का आज डे 1 होगा, तो उसको देखना है कि आज डे 1 है तो 90 डेज बाद, ओके, आपका 90th डे वाला जो पर्सन होगा वो अलग होना चाहिए। उसके पास भले ही 20% हो, 30% हो कोई स्किल, तो उतना भी मतलब कोई ना कोई स्किल उसने डेवलप की है। ओके, देन आगे चल के आपको कोई भी एक स्किल के ऊपर और जोर देना है कि चलो मुझे ये स्किल पे मजा आ रहा है तो ये स्किल पे मैं और ध्यान दूंगा, ताकि आप उससे भी अर्निंग कर पाओ। जैसे हमारा टीम में बहुत लोगों ने वीडियो एडिटिंग पर स्किल पे ध्यान दिया है और भी, तो वीडियो एडिटिंग से भी अर्न कर रहे हैं वो, राइट। तो वैसे आप डिसाइड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो टू गेट मोर अर्निंग्स। ओके, क्योंकि हर एक स्किल का मार्केट में डिमांड है और वो हर एक स्किल पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, आज ही मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया कि सर आपके लिए थंबनेल बनाऊं क्या मैं। ओके, तो पता नहीं लोगों को यूट्यूब पर वीडियो सर्च करो, बस उनको नंबर मिलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कि सर थंबनेल बनाता हूं मैं, सर स्क्रिप्ट भी लिखता हूं, आपके लिए करूँ क्या, राइट। तो वैसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हर एक उन्होंने स्किल डेवलप की है, अरे, राइट। तो भले ही वो एआई से हो या फिर खुद से हो, लेकिन प्रॉपर स्किल डेवलप करके वो अभी अप्रोच कर रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं वो। तो आपको अगर अर्निंग करनी है तो आपको स्किल डेवलप करना होगा। ओके, घर बैठे इनकम करना है, ओके, आसान है वो, लेकिन उसके लिए स्किल डेवलप करने के लिए आप ओपन होने चाहिए। ओके, यस।
सो गाइस आज मतलब ये सारे स्किल्स जो है, ये सारे स्किल डेवलप करने के लिए फॉर श्योर प्रैक्टिकल तो आप करोगे ही, लेकिन जैसे हमने शॉर्ट में देखा, एक तो आप करके सीख सकते हो या फिर आप पढ़ के सीख सकते हो। ओके, अभी ये जो यूट्यूब कंटेंट वाली जो सी चीज़ें हैं वो तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, वो सीखते ही है, राइट। ओके, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बुक से पढ़ के सीख सकते हैं। ओके, इसके ऊपर बुक्स आती भी है कि हाँ भाई हुक्स कैसे बनाया जाए, कॉपीराइटिंग कैसे किया जाए, इसके ऊपर बुक्स भी है मार्केट में। ओके, जो ऑनलाइन कंटेंट से भी अच्छी है। सिमिलरली फॉर ये स्किल्स की बात करें, अगर नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स की, प्रॉस्पेक्टिंग, इन्वाइटिंग, इसको तो हर एक स्किल पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखी है। ओके, बड़े बड़े लीडर्स ने बुक्स लिखी है इसके ऊपर। ओके, तो अगर आप बुक भी पढ़ते हो तो आप फॉर श्योर वन स्टेप अहेड रहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। यस, तो गाइस बुक्स का मतलब बेसिक आप जानते हो कि हाँ भाई बुक्स पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं क्या नहीं, तो आपको मैं बेसिक बस गो थ्रू कराऊंगा एक बार। ओके, शॉर्ट में सबसे आप जानते हो कि हाँ भाई कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, जिस तरीके से आप बात करते हो लोगों से, ओके, आप कौन से वर्ड चूज करते हो, कौन से कीवर्ड चूज करते हो प्रॉपर, आप मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना वो दिखता है आपके बोलने से, राइट। तो ये फ़ायदा होता है अगर बुक्स पढ़ते हो आप, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होता है। ओके, जितना आप बुक्स पढ़ोगे आपका ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। ओके, तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि हाँ भाई बुक पढ़ने से मतलब चमत्कार की तरह ही होता है वो। ओके, कि ऑटोमेटिकली आपका जो भले ही मन में बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो बोलने के माइंड आपका क्लैरिटी मिलता है, आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहता है। ऑटोमेटिकली आप जितना बुक पढ़ोगे उतना, एंड देन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा। आपके कंटेंट में भी दिखेगा वो कि आप किस तरीके से पहले कंटेंट बना रहे थे, लेकिन अभी कैसा कंटेंट बना रहे हो। ओके, फास्ट बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, अटक के बोल रहे हो। ओके, आपको प्रॉपर दिखेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में दिखेगा वो। ओके, तो ये बुक पढ़ने का आप सबसे मतलब बोल सकते हैं कि फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड है आपका कॉन्फिडेंस जो है ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, वो आपका बढ़ेगा इसमें। ओके, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जो होते हैं, सर उसने मुझे सवाल पूछा प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं तो वही अटक गया, क्या आंसर करूँ मैं उसका। ओके, सो गाइस हैंडल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, और उसमें अच्छा ऐसे ऐसे आंसर अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं कि आप बोलोगे हाँ भाई ये तो बेस्ट है, ये सूट करता है उसको। वो स्टूडेंट था, उसको ये असर बोलता मैं तो प्रॉपर वो मान जाता। तो ऐसे ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए अपने पास भी अच्छा कजाबी जो है अपना, कजाबी में भी तरुण सर ने जो शेयर किया है वीडियो, उसमें भी उन्होंने प्रॉपर कंटेंट लिखा हुआ है, और उसमें शेयर कर रहे हैं वो कि हाँ भाई अगर ये हैंड ऑब्जेक्शन आए कि प्रोडक्ट महंगा है, पैसे नहीं है, तो उसके लिए कैसे हैंडल किया जाए, सर ने प्रॉपर लिख के एक्सप्लेन किया है, राइट। तो वैसे बहुत सारे बुक्स में भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। ओके, बुक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे कौन से बुक्स पढ़ सकते हो। देन यस, आपको आप जो भी कंटेंट बनाओ, राइट, रील्स बनाओ या शॉर्ट वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओ, गाइस आपको आइडिया मिलते रहेगा। एन नंबर ऑफ आइडियाज आपको मिलते रहेंगे जब आप मतलब बुक्स पढ़ोगे तो। ओके, कंटेंट में कौन सा हुक डाला जाए। ओके, आप किसी से अगर बात कर रहे हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं से स्टोरी आ जाएगी, हाँ बुक में मैंने वो पढ़ा था, वो स्टोरी था, तो उसको चलो अभी एक्सप्लेन करते हैं वो स्टोरी शॉर्ट में। तो आप उसको वैसा भी बोल सकते हो। ओके, तो उसको दिखेगा हाँ भाई ये तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, ये तो कोई कंसल्टेंट है। ओके, ये कोई मतलब इमेच्योर पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन नहीं है, ये जिससे बात कर रहा हूँ इससे प्रॉपर मतलब एकदम मैच्योर पर्सन है वो, राइट। तो ये मैच्योरिटी कब बढ़ेगी, जब आप बुक्स भी पढ़ना चालू करोगे तो। ओके, तो रीडिंग स्किल भी है जो आपको डेवलप करना ज़रूरी है, जो आपको बिजनेस में आगे लेके जाएगी। ओके, जैसे मैंने आपको कहा पहले ही कि हम आज फॉर एवर लिविंग की बात नहीं करेंगे, हम आज आपकी बात करेंगे। ओके, आप एज अ पर्सन कितना मतलब डेवलप कर सकते हो खुद को, ओके, उसकी बात करेंगे हम। ओके, तो ये एक मतलब पॉइंट है कि आप मतलब बुक्स पढ़ना भी चालू करो तो भी फॉर श्योर आप मतलब खुद में डेवलपमेंट देख सकते हो। ओके, डुप्लीकेशन एंड टीम बिल्डिंग, इसके ऊपर इतने सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपको बहुत हेल्प करते हैं कि हाँ भाई टीम बिल्डिंग के लिए कौन से एक्टिविटी आप कर सकते हो। ओके, डुप्लीकेशन के लिए कौन से आप एक्टिविटी कर सकते हो ताकि टीम मेंबर जो है आप ही की तरह प्रॉपर बिजनेस करे और कंसिस्टेंटली बिजनेस करे। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, फ्यूचर में आपको टीम ही हैंडल करनी है। ओके, यस, आप अगर प्लान कर रहे हो कि मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, सोरिंग मैनेजर बनना है, डायमंड मैनेजर बनना है, तो आपको ये स्किल्स जो है वो आने चाहिए और फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे वो। ओके, एनहांस स्टोरी टेलिंग स्किल्स, गाइस स्टोरी टेलिंग जो है आज के डेट में बहुत ही मतलब वैल्यूएबल स्किल बन गया है। ओके, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो या फिर किसी से बात भी कर रहे हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग वाला स्किल हो कि हाँ भाई मतलब स्टोरी टेलिंग वाला स्किल मतलब मैं तो उसमें इतना स्किल्ड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी राइट, मतलब वो उस दिन ऐसा हुआ, मतलब ऐसा करोगे तो उसने ऐसा किया था, कोई किसी का एग्जांपल लेके आप बोल सकते हो, राइट। कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं, कस्टमर की बात करें, अभी आई थिंक किसी ने शेयर किया, किसी का आंखों का रोशनी आ गया, राइट, तो वो शेयर कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के स्किल से
कि मैंने उनको ऐसा सप्लीमेंट दिया तो उन्होंने सप्लीमेंट मतलब उनको पहले प्रॉब्लम आ रहा था कि सप्लीमेंट यूज़ करूँ या नहीं करूँ, प्रोडक्ट सप्लीमेंट महंगा है, उनको क्वेरीज वगैरह आए। लेकिन उन्होंने एक महीना यूज़ किया, फिर पूछा कि मैडम कब दिखेगा मुझे असर। फिर उन्होंने उनको बोला, मैं बोला कि हाँ भाई और 2 महीने रुको। फिर उन्होंने 3 महीने रुका, फिर मुझे लेते रहे वो सप्लीमेंट। फिर उनको धीरे धीरे करके रिजल्ट दिखने लगा कि हाँ भाई आंखों में कुछ तो हो रहा है। और अभी उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, देखो आपकी उनको आंखी रोशनी है, मतलब अभी धीरे धीरे करके आ रही है। तो इस तरीके से स्टोरी आप जब बनाते हो, राइट, मतलब प्रॉपर फॉर श्योर ओरिजिनल तो होगा ही वो, राइट। लेकिन अगर आप उस तरीके से बात करते हो कि जैसे समझ में आता है कि हाँ भाई मतलब ये जो है प्रॉपर मतलब मंजा हुआ खिलाड़ी है बिजनेस में, ओके, उस तरीके से बोल सकते हैं उसको। यस। नेक्स्ट गाइज, आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रेंथन करने का काम करता है बुक, वो तो मतलब आप बाय डिफॉल्ट समझते हो। एंड रेसिलियंस आपको मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सर 10 लोग ने मुझे मना किया, मैं तो मतलब अभी मुझे मन नहीं है अभी आज करने का काम। ओके सर, मैं प्रॉस्पेक्ट से बात किया, वो मुझे बहुत सवाल पूछ रहा था और उसने मुझे ऐसे सवाल पूछे कि मैं आंसर नहीं कर पाया, तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी बिजनेस करूँ या नहीं, मैं सोच रहा हूँ। राइट, तो किसी ने मना कर दिया, किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, तो लोग थोड़े डिप्रेस होते हैं कभी कभी, राइट। तो इसको मतलब रेसिलियंस इसको बोलते हैं कि हाँ भाई आप मतलब स्ट्रांग रहो। ओके आपका माइंडसेट ऐसा रहे कि हाँ भाई कोई कुछ भी बोले, आप प्रॉपर आपका माइंड फिक्स है, फोकस है आपका कि हाँ भाई बिजनेस में स्ट्रांग कैसे रहना है, आपको मतलब आइडिया है ऑलरेडी। ओके, तो ये मतलब कुछ बेनिफिट्स है, ओके, ऑफ रीडिंग बुक्स। ओके, तो आप बुक्स मतलब जब पढ़ोगे तो आपको मतलब ये धीरे धीरे करके आपको आइडिया आ जाएगा। और फॉर श्योर ये बुक्स पढ़ना भी नहीं कि आप 1 महीना पढ़ोगे फिर बोलोगे सर मैंने 1 महीना बुक पढ़ा हो गया मेरा काम, वैसा नहीं है। ये लाइफ टाइम जर्नी होनी चाहिए आपकी। ओके, 1-2 दिन का काम नहीं है ये। यस, बिल्कुल। आपको टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगी। ओके, तो आप अभी अभी अपने टीम में भी बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ रहे हैं और मतलब ऑटोमेटिकली मतलब उनका भी दिख रहा है कि कंटेंट में थोड़ा सुधार हो रहा है। ओके, तो वो भी कुछ लोग अगर शेयर करना चाहेंगे तो वो रेडी रहिएगा, आपको मैं मौका दूंगा शेयर करने के लिए। ओके, यस। तो गाइज नेटवर्क मार्केटिंग में हम कौन से बुक्स पढ़ सकते हो उसके आपको मतलब लिस्ट बहुत सारा यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। यूट्यूब पर डालो, चैट जीपीटी पर डालो, कोई भी एआई टूल में डालो, आपको कौन से बुक पढ़ने चाहिए आपको मिल जाएंगे बुक्स। ओके, तो अभी ये कुछ बुक्स हैं जो मतलब ये मेरे एग्जाम्पल निकाले हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आया कि हाँ भाई ये बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ओके, मुझे एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ भाई कौन से बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने निकाले हैं। ओके, तो टैबुलर फॉर्मेट में मैंने चैट जीपीटी से इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर दिया है। अभी स्किल की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल्स की बात करें, प्रॉस्पेक्टिंग। ओके, अभी लोगों को अप्रोच कैसे करना है वो डर लग रहा है थोड़ा कि हाँ भाई कैसे अप्रोच करूँ मैं। ओके, ये नोन पर्सन है अननोन पर्सन है, लेकिन अभी इसको अप्रोच कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके, तो अभी बुक इसका बस ये मैंने एग्जांपल निकाला है कि हाँ भाई कौन सा बुक इसको अप्लाई कर, बहुत सारे बुक कौन से भी एग्जांपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, लेकिन ये एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एरिक वोरी का जो बुक है गो प्रो। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो तो एरिक वोरी को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो गाइज आपको देखना चाहिए कि यूट्यूब पर जाके कि एरिक वोरिक कौन है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब बहुत फेमस लीडर है वो। ओके, उनके बहुत सारे बुक्स भी है और यूट्यूब पर बहुत सारे उनके सेशन आपको देखने मिलेंगे। ओके, तरुण सर ने भी उनका सेशन लिया था लाइव जाके। ओके, तो आपको उनका भी मतलब मिल जाएगा। ओके, एरिक वोरिक का एक बुक है गो प्रो नाम से। ओके, तो अगर कोई बोले कि हाँ भाई मुझे लोगों से अप्रोच करना समझ में नहीं आ रहा है कैसे, ओके, तो उन्होंने बुक पर लिखा है प्रॉपर कि हाँ भाई प्रॉपर उन्होंने 7 स्टेप्स दिए हैं कि आप प्रोफेशनली कैसे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो उनके ये बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है वैसे। ओके, तो वैसे आप उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि हाँ भाई आप क्यूरियोसिटी बिल्ड कर सकते हो कि हाँ भाई वुड यू बी ओपन टू, मतलब किसी पर्सन से आप मिलते हो तो उसको पूछ सकते हो कि हाँ भाई मतलब क्या आप ओपन है एक बिजनेस आइडिया जानने के लिए, ऐसा आप पूछ सकते हो। ओके, तो जो पर्सन है वो तो हाँ बोलेगा या नहीं नहीं बोलेगा, राइट। तो अगर वो हाँ बोलेगा तो फॉर श्योर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ बिजनेस क्या है क्या नहीं, ना ही बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन आपने पोलाइटली पूछा उसको। ओके, आपने उसको अप्रोच किया लेकिन पोलाइटली अप्रोच किया आपने। ओके, ये सेल्समैन की तरह नहीं कि प्लीज़ देख लो है ना एक बिजनेस अभी तुमको देखना है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आपने पोलाइटली अप्रोच किया, आपको पोलाइटली आंसर मिलेगा कि हाँ भाई येस और नो। ओके, नो मिलेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपको ये ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे बुक्स में से। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल कि हाँ भाई लोगों को अप्रोच करना नहीं आ रहा है मुझे, कैसे अप्रोच करो लोगों को। ओके, यूजुअली आई थिंक ऑफलाइन में ये लोग ट्राई कर सकते हैं कि हाँ भाई लोगों को अप्रोच कैसे करना है। ओके, लेकिन ऑनलाइन में भी आप किसी को अगर पिच कर रहे हो, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे करते हैं कि डीएम कर दे बहुत सारे लोग, राइट। तो डीएम में मतलब बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई मतलब वुड बी ओपन टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, वुड बी ओपन टू नो दिस बिजनेस। ओके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वैसा आप पूछ सकते हो, राइट। वैसा है। एंड सेकंड है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। ओके, तो ऑब्जेक्शन में क्या, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड टफ क्वेश्चंस, मतलब कोई मना कर देगा उसका डर लग रहा है मुझे कि सर मुझे डर लग रहा है कि उसने मना कर दिया तो क्या होगा। ओके, तो मतलब उसके लिए बुक जो है कि यूर फर्स्ट ईयर नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पहला साल कोई बुक है। ओके, मैंने पढ़ी नहीं है लाइट, लेकिन उसका एग्जांपल है जो ये है कि हाँ भाई स्क्रिप्ट फॉर हैंडलिंग कॉमन ऑब्जेक्शन। तो कॉमन ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बुक्स बनी है, तो वैसे ये भी एक बुक है। ओके, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि हाँ भाई आपका जो भी टाइम नहीं है उसको आप स्पेयर टाइम में कैसे चेंज कर सकते हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है लेकिन आपको चाहते हो कि आपके पास टाइम हो,
ओके, तो उन्होंने मतलब वो एग्जांपल दिया कि आप उस तरीके से ऐसे उसको बात कर सकते हो, तो आपका ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपका आसान हो जाएगा। क्लोजिंग सेल्स, ओके, सेल्स को क्लोज कैसे करना है। बहुत लोग अभी जैसे हम देखते हैं टीएलएफ में, सर लीड्स नहीं आ रही है, सर लीड्स आ रही है लेकिन बिलिंग नहीं कर रहे हैं, सर बिलिंग कर रहे हैं लेकिन फाइव के वाली कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा स्टेज होता है हर एक का। ओके, जब आप ज्वाइन करते हो आपको पहले सीखना, सब कुछ सीखना समझ होता है 90 डेज के अंदर। देन आपका स्टेज बढ़ते आगे आगे, आप कंटेंट बनाओगे, कंटेंट पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सर व्यूज़ आ रहे हैं, अभी लीड्स नहीं मिल रही है, अभी लीड्स मिल रही है, लीड्स पर मतलब क्लोजिंग नहीं हो रही है। ओके, तो आप फ्यूचर में जाके क्लोजिंग वाले स्केल्स में यहाँ पे जाके अटकोगे। ओके, ये स्टेज आपका आएगा कि सर क्लोजिंग नहीं हो रही है। ओके, तो आप कनेक्ट करोगे अपलाइन से कि हाँ भाई क्लोजिंग कैसे करना है कैसे नहीं। लेकिन उसके लिए भी बुक अवेलेबल है ऑलरेडी कि हाँ भाई ये इन्फ्लुएंस बुक बाय रॉबर्ट जो ऑथर है उनका, राइट। तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि प्रिंसिपल्स लाइक स्कार्सिटी एंड सोशल प्रूफ। तो ये भाई हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं। क्रिएट अर्जेंसी, हम अर्जेंसी बनाते हैं कि भाई ऑफर वैलिड ओनली फॉर 5 डेज। ओके, आज के लिए ही ऑफर है, आज शाम तक ही ऑफर है। ओके, आपको डीएनए का मतलब प्रोडक्ट डिटेलिंग वर्कशॉप चाहिए तो आज का ही ऑफर है, आपको जनरेशन वर्कशॉप भी फ्री मिल जाएगा मेरी तरफ से। कल का ही ऑफर है, 4 दिन का ही ऑफर है, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग ऑफर देते ही है, राइट। तो ये भी आपको बहुत सारे बुक से सीखना मिलता है कि आप इसको भी कैसे इजीली यूज़ कर सकते हो। ओके, हम जो सारे एग्जाम्पल सीखते हैं प्रैक्टिकली भी यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई लीडर ने बुक से ही निकाले हैं। ओके, यस। डुप्लीकेशन एंड टीम वर्क, तो टीम मेंबर्स अगर कोई इनएक्टिव टीम मेंबर है तो बिल्डिंग एन एम्पायर एक बुक है जो ऑथर का है वो। तो वो उन्होंने प्रॉपर एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया कि डुप्लीकेशन सिस्टम के कैसे फोकस किया जाए। ओके, मॉर्निंग पावर कॉल रूटीन्स इन टीम, मतलब मॉर्निंग में सुबह कुछ टीम मीटिंग लेते हैं, वो पावर कॉल होता है ताकि टीम मोटिवेटेड रहे। ओके, तो ये उन्होंने एग्जांपल दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, तो बहुत लोग अभी अपने टीम में ही, ओके, बहुत लोगों ने शेयर भी किया कि सर इनकन्सिस्टेंसी हो रही है। ओके, घर में बच्चे हैं तो रोज़ वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है। ओके, तो घर में एग्जाम है तो रोज़ वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है। तो गाइस उसके लिए एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में तरुण सर ने भी बहुत बार कहा है। अपने विक्रम खंडेलवाल जो है उन्होंने भी बहुत बार कहा है कि ये बुक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, राइट। एटॉमिक हैबिट्स, तो ये इंटरेस्टिंग बुक है। तो उन्होंने ये बुक में एग्जाम्पल दिया है कि हाँ भाई 1% बेटर डेली, ओके, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। तो आपको बस 1% ग्रो करना है डेली, आपको पूरा पहाड़ उठाना नहीं है पर डे, शॉर्ट शॉर्ट करके आप काम करो। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया कि हाँ भाई सेट 15 मिनट्स रीडिंग है, 15 मिनट्स डीएम रूटीन। आपको बस 15 मिनट निकालो दिन में भर में, जैसे बुक रीडिंग का एग्जांपल है तो पढ़ने के लिए निकालो, या फिर आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए निकालो, और बाकी 15 मिनट लोगों को डीएम करने के लिए, मतलब किसी से प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो उनके लिए। ओके, तो ये एग्जांपल उन्होंने दिया, तो अच्छे अच्छे एग्जांपल आपको ऐसे बुक्स में मिलेंगे। ओके, देन वैसे ही टाइम मैनेजमेंट का है कि हाँ भाई आप एक रूल एक ये ईट दैट फ्रॉग, ये एक बुक है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई एक रील शूट करो आप मॉर्निंग में, आपको लग रहा है कि आपको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सुबह उठ के सबसे पहले आप वही काम करो। ओके, बहुत लोग बोल रहे सर सुबह बच्चे स्कूल को जाएंगे मेरे तो कैसे होगा। तो गाइस उनके स्कूल के जाने के पहले आप और भी जल्दी उठो और सबसे पहले वही काम करो, तो दिन भर में आपका माइंड फ्री रहेगा कि हाँ भाई मैंने आज का मेजर काम जो है वो कर लिया है। ओके, सबसे डिफिकल्ट काम था मेरा रील बनाना, शॉर्ट बनाना, वीडियो बनाना, वो मैंने आज कर लिया है। ओके, उसके लिए 1 स्टेप लेना है तो मैंने ले लिया है वो। तो ये बुक का वो बोल सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी ये है वो बुक के अंदर। यस, कंटेंट क्रिएशन, तो उसके लिए भी बुक है कि हाँ भाई कौन सा पोस्ट सोशल मीडिया पे कौन सा पोस्ट किया जाए। तो उन्होंने मतलब ये गैरी वैरी जो है ये भी बहुत अच्छे ऑथर है। ओके, तो क्रशिंग इट नाम का बुक है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई बिहाइंड द सीन पोस्ट, ये आप पोस्ट कर सकते हो कि बिहाइंड द सीन्स कि हाँ भाई आज मैं कंटेंट बनाने वाली हूँ लेकिन उससे पहले मैं मतलब क्या कर रहा हूँ अभी, वो आप शेयर कर सकते हो। तो उन्होंने अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। तो गाइज ऐसे मतलब यही एग्जाम्पल जब आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप जब ये हैबिट डालोगे बुक्स पढ़ने का, तो आपको ये एग्जाम्पल जो ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, आपका माइंड ओपन होता रहेगा। ओके, जैसे अभिषेक अभी पूछ रहे थे कि हाँ भाई मतलब दिन भर में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी और क्या कर सकता हूँ मैं, तो अभिषेक आप भी ये मतलब ये बुक्स पढ़ना चालू कर सकते हो, कोई ना कोई बुक आप लो, आपको बताऊंगा मैं कौन सा बुक आगे स्टार्ट कर सकते हो आप विद, आपको आइडिया आता ऑटोमेटिक आते जाएगा, आपका माइंड जो है ऑटोमेटिक ओपन होते रहेगा। ओके, यस। स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी टेलिंग आपको मतलब आप हर वीडियो में शेयर कर सकते हो, तो बेसिक आप समझ जाओगे कि हाँ भाई मैंने स्टार्ट कैसे किया। ओके, मेरे प्रॉस्पेक्ट ने स्टार्ट कैसे किया, मेरे कस्टमर ने स्टार्ट कैसे किया, आप कोई भी मतलब स्टोरी टेलिंग कैसे है ये बुक में आपको सीखने मिलता है कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके से होता है। ओके, देन लीड जनरेशन, उसके लिए भी बहुत अच्छा बुक है .com सीक्रेट्स, रसेल ब्रंसन, ये भी बहुत बड़े ऑथर है। ओके, इनके भी बहुत सारे वेबिनार वगैरह होते हैं, इनका भी कम्युनिटी है। ओके, तो इन्होंने भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई फ्री गाइड दो ताकि लीड आपको कैप्चर कर सको आप, तो उनका भी बहुत अच्छा मतलब बुक है ये। ओके, एंड देन लास्ट माइंडसेट एंड पॉजिटिव, इसके ऊपर तो बहुत सारे बुक है माइंडसेट के ऊपर, राइट। तो ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपने सुना ही होगा नाम। ओके, तो अफर्मेशंस वगैरह यूज़ करो, तो ये सारे मतलब बुक्स के अंदर उन्होंने दिया है। ओके, माइंडसेट पॉजिटिविटी के लिए तो मतलब अपने को नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप करना ही होता है, और उसके लिए एन नंबर ऑफ बुक्स है, आप जितना बुक्स ढूंढोगे उससे भी आपको मतलब मिलते ही रहेंगे बुक्स। ओके, तो इसके लिए तो अनलिमिटेड बुक्स है। यस, सो गाइज ये मतलब कुछ
स्किल्स है जो आप मतलब डेवलप कर सकते हो यूजिंग दिस बुक्स। ओके। तो गाइस हर एक बुक को मतलब आप मतलब एक बार दो बार चार बार पढ़ोगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ओके। सो गाइस अभी बहुत लोग का सवाल होता है कि सर मतलब आ, दो टाइप के लोग होते हैं। कोई कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई मतलब एक ही बुक बार बार पढ़ो। ओके। ताकि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप बहुत सारे बुक पढ़ो। ओके, साल में 50 बुक पढ़ो, 100 बुक पढ़ो। ओके, लेकिन एन नंबर ऑफ बुक आप लेके रखो, आप पढ़ते रहो उसको, हर एक बुक को पढ़ते रहो। ओके। तो मैंने चैट जीपीटी में पूछा कि हाँ भाई मतलब दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि हाँ भाई आप तीन चार बुक ऐसे रखो जो आपको बार बार पढ़ना हो। ओके, जिसमें आपको बहुत बार एक्स्ट्रा करना हो कुछ ना कुछ, राइट। तो आप तीन चार बुक ऐसे रख सकते हो जो आप बार बार पढ़ो, एंड देन आप पैरेलली दो चार बुक आप ले सकते हो पैरेलली कि हाँ भाई वो भी बुक पढ़ो। ओके, ताकि आपको नया नया बुक्स का भी मतलब आते रहे। लेकिन वो चार बुक जो है ऐसे हो कि हाँ भाई आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिले उससे। ओके। जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, आप ये बुक कितने बार भी पढ़ो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ओके। द सीक्रेट बुक, आपको बार बार पढ़ो, आपका माइंड खुलता रहेगा वो, राइट। तो ये ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग बुक्स है, राइट, जो आपका माइंड ओपन करने के लिए बैठे हैं। जितने बार पढ़ोगे उतने बार बुक तो वही रहेगी, लेकिन आप इंसान चेंज हो जाओगे। ओके। यस। सो गाइस इस अभी ये तो है मतलब आप सोचोगे कि हाँ भाई सर आपने तो मतलब कभी बोलते हो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाओ, कभी बोलते हो रील्स बनाओ, कभी बोलते हो शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स के लिए टाइम निकालो। अभी बुक रीडिंग का आप बोल रहे हो, नया स्किल लेके आ रहे हो, तभी इसके लिए टाइम कहाँ से निकाले? तो ये सवाल बहुत लोग का रहेगा माइंड में, सर अभी तो बुक पढ़ने बोल रहे हैं, तो अभी टीएलएफ के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है, मेरा तो एग्जाम भी है, राइट, बच्चे भी है, तो कभी बुक पढ़े? बच्चों के सामने बुक पढ़े तो बुक फाड़ देंगे, तो क्या करें सर बताइए। सो गाइस टाइम निकालना कैसे है बुक रीडिंग के लिए, तो उसके लिए भी हम एक काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी में ढूंढते हैं कि हाँ भाई बताओ मुझे टाइम टाइम कैसे निकालते हैं। तो वैसे मैंने सुबह ढूंढा था, लेकिन आपके सामने कैसे ढूंढता हूँ, आपको कोई भी सवाल हो, आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है, चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, कोई भी आप एआई टूल हो यूज़ कर सकते हो। ओके। जैसे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ फॉर हाउस वाइफ। ओके, यहाँ पे सिंपल सा लिखा मैंने कि हाउ डू आई टेक आउट टाइम फॉर रीडिंग बुक्स, बुक पढ़ने के लिए टाइम कैसे निकालूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और यहाँ ये भी लिखते हैं कि चलो मेरे दो बच्चे भी है, आई हैव टू स्मॉल किड्स। ओके। यस, तो ये एंटर कर दे, तो लेट्स सी मतलब चैट जीपीटी क्या बोलता है। ओके। गाइस तो ये चैट जीपीटी का आंसर, अगर आप मतलब जैसे सवाल आपको पूछो तो ये उन्होंने कहा है कि हाँ भाई 10 मिनट्स मॉर्निंग, रीड राइट आफ्टर वेकिंग अप बिफोर किड्स गेट अप, मतलब आप जैसे ही उठते हो बच्चे उठने के पहले 10 मिनट आप पढ़ सकते हो। कितना अच्छा जवाब है, राइट। प्रैक्टिकली आप ये कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है ये, राइट, क्योंकि आप पहले उठते हो हमेशा। ओके। तो बच्चे उठने के पहले, कोई भी उठने के पहले, आप जैसे ही उठते हो आप 10 मिनट निकालो और बुक पढ़ो, सिंपल सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ओके। नैप टाइम रीडिंग, ओके, यूज पार्ट ऑफ किड्स नैप टाइम टू रीड 5-10 पेजेस, जब भी बच्चे सोए वो 5-10 पेज पढ़ लो आप, जब भी बच्चे सोए 5-10 मिनट पढ़ 5-10 पेजेस पढ़ लो आप। इतना अच्छा और एग्जाम्पल दिया है चैट जीपीटी ने। ओके। ऑडियो बुक्स वाइल कुकिंग, यस, चैट में किसी ने आई थिंक दो चार लोगों ने कहा है कि मैं चैट ऑडियो बुक्स पढ़ती हूँ, तपसम जी ने कहा है और सुधांशु जी ने भी कहा कि हाँ भाई मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ। ओके। यस बिल्कुल, जब रील देखने का मन हो मतलब वो टाइम भी आप पढ़ सकते हो बुक्स। तो ऑडियो बुक्स भी आप सुन सकते हो, तो वो भी मतलब एक इंटरेस्टिंग तरीका है। ओके। देन बाथरूम टाइम, तो ये बुक इन बाथरूम, बाथरूम में तो सर मैं नहीं करूँगा कि बाथरूम में जाके बुक लेके जाओ और पढ़ो। ओके। नाइट टाइम 5 पेजेस, तो यस सोने के पहले भी आप पढ़ सकते हो। ओके, क्योंकि बच्चे सोने के बाद आपको टाइम मतलब मिले तो वो आप पढ़ सकते हो। ओके, या फिर सुबह वाला अच्छा एग्जाम्पल तो है ही। ओके। किड्स प्ले टाइम, जब बच्चे खेल रहे हो, ओके, तो यस आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी आपको बच्चों को सेफ्टी देखना है एंड देन प्रॉपर पढ़ना है। ओके। संडे लॉन्गर सेशन, यस संडे को मतलब आप और थोड़ा लंबा कर सकते हो, 10 मिनट का आप 15-20 मिनट कर सकते हो एंड देन वो टाइम पढ़ सकते हो आप। ओके। यस। आप 5 दिन भी अगर पढ़ते हो तो आप महीने में 150 पेज पढ़ते हो, मतलब 2 बुक्स आप पढ़ सकते हो 2 महीने के अंदर। ओके। सो ये गोल्डन रूल बताया उन्होंने मॉम्स के लिए। ओके, क्योंकि अपने टीम में आप देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी हाउसवाइफ्स ही होती है, और 95% हाउसवाइफ का प्रॉब्लम ये होता है कि सर बच्चे हैं, स्कूल है, उनका कुछ ना कुछ होता है, राइट, घर का कुछ काम करना होता है, तो कब बुक पढ़े, कब एक्टिविटी करे, कब वीडियो बनाए। ओके। तो सेम थिंग आप वीडियो बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज हम बुक पढ़ने की बात करें तो गाइज आप बुक पढ़ना अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई एक एक्टिविटी मुझे इंक्लूड करना है लाइफ में मेरे, ताकि मैं एज ए पर्सन ग्रो हूँ, ओके, तो आप ये टाइम यूज़ कर सकते हो। ओके। यस।
सो गाइस बुक कब पढ़ना है, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप लिख सकते हो, स्टूडेंट के लिए ChatGPT में सर्च कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, स्टूडेंट होता आपको मतलब फॉर श्योर आप बुक तो बहुत सारे पढ़ते होंगे एकेडमिक्स, लेकिन एकेडमिक के साथ आप सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हो जो आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। ओके, सो गाइज आपने सुना ही होगा कि लीडर्स आर रीडर्स, राइट। जो भी लीडर है वो हमेशा रीडर होते ही है। जो भी बड़े लोग का नाम लो, राइट, बिल गेट्स का भी नाम लो आप, राइट, तो वो कितने बुक पढ़ते हैं साल भर में, राइट, 50 के ऊपर बुक पढ़ते हैं वो साल भर में। ओके, कोई भी किसी का भी नाम लो आप, ओके, जो बड़े इन्वेस्टर है उनका भी नाम लो, तो हर कोई पर्सन जो है बुक पढ़ते ही है वो। जैसे हमने शॉर्ट्स में भी देखा कि हर कोई पर्सन जो है जिसको ग्रो करना है लाइफ में, ऑलरेडी ग्रो भी कर चुका है, वो अभी भी बुक पढ़ता है। बुक में से कोई भी एक आइडिया है जो आपको मतलब क्लिक हो जाए, तो वो आइडिया आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ओके, ये पावर है बुक्स के अंदर। ओके, मुझे पर्सनली बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, लेकिन कुछ टाइम से मतलब मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी 2-3 वीक से मैंने भी बुक्स पढ़ना चालू कर दिया है। ओके, तो मेरा इंटरनल टीम में भी मैंने देखा कि हाँ भाई बहुत लोग को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है। ओके, सो यस, वो लोग भी शेयर करेंगे अभी सेशन के बीच में कौन से बुक्स पढ़े। ओके, तो कौन से बुक्स पढ़े आप, मतलब आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई कौन से बुक पढ़ना आपको चाहिए उसका भी हेल्प, तो गाइस ये कुछ बुक्स है। जैसे आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं पहले एमबीए में था, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब एमबीए में था मैं, और ट्रेडिशनल वे में हमारी टीम बिजनेस कर रही थी। ओके, जो मैंने ऑलमोस्ट 3 साल तक ट्राई किया ट्रेडिशनल में करना, लेकिन इतना कुछ खास हुआ नहीं था। देन स्विच टू टीएलएफ क्रिएटर्स। ओके, तो गाइस ट्रेडिशनल में वो कर रही थी, लेकिन वो टीम का एक अच्छा आदत था कि सुबह उठ के उन्होंने एक कम्युनिटी जो है बनाया था। कम्युनिटी में आपको बुक पढ़ना है, सबको ऑनलाइन आना है, सुबह उठ के पहले एक तो गुड मॉर्निंग बोलना है 5:30 बजे, एंड देन जो भी बुक डिसाइडेड होगा, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी में एक बुक डिसाइड होगा कि आज हम ये बुक पढ़ेंगे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, इसका पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 15 पढ़ने पढ़ने वाले, 5 पेज पढ़ने वाले। तो पूरा टीम मिलके वो 5 पेज पढ़ेगा, एंड पेज पढ़ने के बाद आइदर बुक में लिखो जो समझ में आया है, या फिर वो टेलीग्राम में टाइप करो कि आपको जो समझ में आया, पॉइंट्स पे टाइप करो। आपका पढ़ना भी हो गया, जो पढ़ा है पॉइंट्स लिखना भी हो गया, और आपने अगर पोस्ट किया तो आपको उसका पॉइंट्स मिलता था। ओके, बिजनेस पॉइंट्स, टीम पॉइंट्स नॉर्मल था वो। ओके, कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन पॉइंट मिलता आपको। ओके, और आपके पॉइंट्स अगर 100-150 से कम हो जाए वो महीने के अंदर, तो नेक्स्ट मंथ आप वो ग्रुप का पार्ट नहीं बनोगे। ऐसा कुछ एक्टिविटी था मेरे पुराने टीम में। ओके, लेकिन बुक पढ़ने का आदत जो है उनका इतना इंटरेस्टेड था कि उन्होंने बस 3-4 बुक्स जो थे यहाँ पर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 बुक्स जो है उन्होंने फिक्स करके रखे थे कि ये 5 बुक्स ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 2 तरीके के लोग होते हैं, कि हाँ भाई एक लोग जो होते हैं वो 3-4 बुक्स ही बार 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 वही पढ़ने वाले हैं और वही पढ़ते रहेंगे। ओके, उनको वो बुक से ही मतलब पूरा जूस निकालना है। ओके, सेकंड लोग होते हैं कि हाँ भाई हर कोई बुक मतलब 50, 100, 150 बुक्स उनको कलेक्ट करना है, कि हाँ भाई ये बुक पढ़ा, चलो नेक्स्ट बुक, चलो नेक्स्ट बुक, चलो नेक्स्ट बुक। ओके, दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं। ओके, लेकिन जो टीम थी वो 3-4, ये जो 5 बुक्स है वो ही लेके काम कर रही थी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। ओके, और गाइज ये 5 बुक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने भी ऑलमोस्ट 2-3 साल यही बुक्स बार 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 पढ़े हैं। ओके, और सुबह उठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। आप एक बार सुबह उठ के पढ़ने लग जाओ, आपको इतना मज़ा आएगा दिन भर में कि हाँ भाई मतलब एनर्जेटिक आप फील करोगे कि हाँ भाई बहुत एनर्जी आ गया और मतलब माइंड खुल गया है। ओके, द सीक्रेट बुक आप सभी जानते हो, मतलब 95% लोग जानते होंगे द सीक्रेट क्या है। रोंडा बायन का इसमें वीडियो भी है, इसका मूवी भी है। ये बुक जो है आप पढ़ोगे आपको और मज़ा आएगा कि हाँ भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो सीख जाओगे उसमें। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का इस बहुत सारे अलग टीम्स में ये बुक्स मतलब पढ़ाते ही है कि रॉबर्ट कियोसाकी का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रमोट करने वाला ये एकलौता बुक है। छोटा सा ही बुक है ये। ओके, बहुत आई थिंक कुछ पेजेस का ही बुक है ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो आप हो वो कितना बड़ा बिजनेस है। आप में से अगर कोई है जिसको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सच में मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ये करूँ या नहीं, फ्यूचर में डेवलप करूँ या नहीं, घर वाले बहुत मना कर रहे हैं, फिर भी मतलब थोड़ा आप डाइसी हो रहे हो कि करूँ या नहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो गाइस आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक के अंदर आप जब पढ़ोगे तो मतलब आपको इतना मजा आएगा कि हाँ भाई मैं बेस्ट बिजनेस में एट द बेस्ट टाइम हूँ। क्योंकि आपको ये क्लियर मिलेगा। नेक्स्ट बुक जो है, ये बुक का नाम मैं जानता हूँ कि आप में से हार्डली किसी ने ये नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने भी ये हार्ड नाम सुना था। क्योंकि हाउ आई रेस्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। ओके, फ्रैंक बेटिकर। ओके, तो गाइज ये बुक ऐसा है, ये सेलिंग के ऊपर ही बुक है, सेल्स के ऊपर ही बुक है। ये जो ऑथर है ये इंश्योरेंस सेल्स में थे। ओके, जो जो मैं बुक पढ़ा है तो ये ऑथर ने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ किए ताकि उनका सेल्स बढ़ा। ओके, वो पूरे फेलियर थे पहले, सेल्स कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई आगे बढ़ना है, देन उन्हें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ किए, स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स। जैसे पूरा प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट बना के रखो, नेक्स्ट वीक क्या प्लान, सैटरडे कोई सब प्लान लिख के रखो। ओके, तो वैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ उन्होंने प्रॉस्पेक्ट के बारे में पहले जानकारी लेके रखो। जिससे हम बात कर रहे हैं उसका पहले जाके प्रोफाइल देखो कि आप वो प्रोस्पेक्ट कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है।
तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, स्टोरी के रूप में एग्जाम्पल दिए उन्होंने, कि उनके ऑफिस में गया, फिर ऑफिस में ऐसा हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये बुक पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सेल्स के लिए बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने बहुत बार पढ़ा ये बुक। ओके, तो ये बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बुक इसलिए आई थिंक शायद वो टीम में था कि हाँ भाई ये बुक सेल्स के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपका स्किल इससे बहुत डेवलप होने वाला है। देन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। गाइज ये बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आप, हमारा काम क्या है, पीपल्स बिजनेस है ये। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पीपल्स बिजनेस। ओके, आप जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना लोगों से बात करोगे, ओके, जितना लोगों से क्वालिटेटिव बात करोगे, उतना आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। ओके, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, प्रोस्पेक्ट गया है वो, फ्यूचर में कभी आने वाला है नहीं। ओके, किसी ने कुछ यूट्यूब पे कमेंट कर दिया गलत सा, आपने उस पर और कमेंट कर दिया। ओके, किसी ने बोल दिया मैं देख लूंगा, तो हाँ मैं भी देख लूंगा, ऐसा है तो ऐसा नहीं करना है। कमेंट भी आपको पॉजिटिव लिखना है। कितना भी नेगेटिव कमेंट आया आपको, आपको पॉजिटिव ही सोचना है और लिखना पॉजिटिव ही है, यूट्यूब पर हो या फिर आपको कॉल पर भी। ओके, किसी से बात हो रही है तो आपको पॉजिटिवली बात करनी है उससे, तो आपको लोगों से कैसे बात करनी है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपको ये बुक में मिल जाएगा इजीली। ओके, तो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत फेमस बुक है। इसके ऊपर इतने सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि आप मतलब बोलो कि हाँ भाई अब तक क्यों नहीं पढ़ा मैंने। एंड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचने का क्या नतीजा होता है। गाइज ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें इतने सारे स्टोरीज है कि आप जब बड़ा सोचना लग जाओगे, राइट, आप सोचोगे जब मुझे मैनेजर बनना है अभी, ओके, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे डायमंड मैनेजर बनना है, मुझे कार प्लान लेना है, ओके, आपको ये बुक में बहुत फ़ायदा होगा। सीरियसली ये 5 बुक जो है मैंने इतने बार पढ़े हैं कि मतलब आपको स्टार्ट करोगे, अगर किसी को स्टार्ट करना ही है तो गाइज स्टार्ट विद दिस 6 बुक्स। एटॉमिक हैबिट्स की बात करें तो गाइज इसमें ये बुक्स का मैंने समरी पढ़ा है। ओके, हैबिट्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हैबिट्स का अपने लाइफ पर क्या असर होता है। ओके, सबसे पहले आप हैबिट बनाते हो, एंड देन आगे चल के हैबिट आपको बनाती है। क्योंकि आपको बनाती है, आपके लाइफ को बनाती है, आपके बिजनेस को बनाती है। ओके, तो हैबिट्स का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए ये बुक जो है जेम्स क्लियर, मैंने बुक तो पढ़ा नहीं है लेकिन मैं भी फॉर श्योर पढ़ूंगा ये बुक्स, क्योंकि तरुण सर ने बहुत बार कहा है ये बुक के बारे में, विक्रम खंडेलवाल ने भी बहुत बार कहा है ये बुक के बारे में। ओके, तो आप अगर स्टार्ट करने करने वाले हो तो आई वुड सजेस्ट कि ये 6 बुक्स जो है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये 6 बुक तो मतलब स्टार्ट कर सकते ही हो। ओके, अलॉन्ग विद दैट मतलब मैं जो पर्सनली बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी है बुक पढ़ने में, तो ये कुछ बुक्स हैं जो मतलब मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। ये मेरा बुक लाइब्रेरी है अमेजोन का। तो ये रिच डैड पुअर डैड बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, और 10x रूल ये भी बहुत अच्छा है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये भी बहुत फेमस बुक है ये। ओके, देन एटॉमिक हैबिट, यू कैन सेल, शिव खेरा, ये बहुत अच्छा ऑथर है, आप सब जानते हो शिव खेरा। ओके, तो इनके बहुत सारे बुक्स हैं। ओके, यू कैन विन भी इनका बुक है, ये मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था। देन ये बुक अल्केमिस्ट, ये स्टोरी वाला बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये जब स्टोरी वाला बुक पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई बुक पढ़ने में और मजा आएगा, राइट। अगर मेरी बात करो पर्सनली, तो मुझे बुक पढ़ने में कब इंटरेस्ट चालू हुआ, जब मैं कॉलेज में था और मेरे स्कूल फ्रेंड ने मुझे एक बुक दिया था पढ़ने के लिए, 5 पॉइंट समवन, जो 3 इडियट्स के जो बुक्स का ऑथर जो है, नाम भूल गया मैं, राइट। तो 5.7 उनका बुक है। ओके, जो जिस पर 3 इडियट्स बुक बना है, 3 इडियट्स मूवी बनी है, तो वो था, ऑथर का नाम भूल गया अभी मैं, बहुत टाइम से ऑथर का नाम देखा नहीं यहाँ वहाँ इसलिए। ओके, ये चेतन भगत, बिल्कुल बिल्कुल वर्नर जी, चेतन भगत नाम है उनका। तो उनका बुक पढ़ा था मैंने 5.7। तो बुक पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आ गया बुक पढ़ने में कि हाँ भाई मतलब क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है उसने, और मतलब ऐसे ही बुक पढ़ते पढ़ते तो वो ऑथर के बुक्स लेने लगा मैं, और वो लेते लेते फिर अल्केमिस्ट लिया, ऐसे कुछ ना कुछ बुक्स लेते रह गया मैं, राइट। तो फिर इंटरेस्ट आता रहा बुक्स में कि हाँ भाई चलो बुक्स पढ़ने में और मजा आएगा। फिर मैं सेल्फ हेल्प बुक लेते रहा, और ये भी उसमें से बुक है, मॉन्क हू सोल्ड फरारी, ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है। ये आपको पर्सनली डेवलप भी करेगा और स्टोरी के रूप में डेवलप करेगा, बहुत मजा आएगा बुक पढ़ने में। ये बुक पढ़ते पढ़ते ऐसा आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा कि हाँ भाई कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ पहाड़ है, पहाड़ से ऑथर निकल के आया है, पहाड़ से और कोई उसको सेंट मिला है, राइट। तो ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने लिख कर रखा होता है ये ऑथर्स लोग ने। देन एंटोनी रॉबिन्स, गाइज ये मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंशियल ऑथर है। ओके, स्पीकर है ये, तो इनके भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं। ये बुक मेरे पास है, अवेकन द जायंट विद इन, लेकिन ये बुक भी उनका अच्छा है, मैंने सुना है, अनलिमिटेड पावर, ये भी फ्यूचर में कभी लेंगे। एरिक वरी का ये गोप्रो बुक मतलब मैंने सुना है, राइट, अब तक लिया नहीं है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एरिक वरी जो है मतलब उनको गॉड माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के गॉड है वो। ओके, तो वैसे बोलते हैं बहुत लोग वीडियोस में, तो उसका आप पढ़ सकते हो बुक उनका, ये गोप्रो वाला। ओके, देन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो ये भी आप पढ़ सकते हो बुक्स। ओके, देन बाकी बुक्स ये हाउ टू विन फ्रेंड्स जैसे हमने बात की अभी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है। आपको इनकम, अगर आपको लाइफ में इनकम बढ़ाना है आपका, ओके, वेल्थ बढ़ाना है, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी और मनी के ऊपर बुक्स आपको जरूर बाय करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। ओके, देन द वन थिंग, अभी ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी करंटली। ओके, तो इस पर भी चालू है, मतलब ये पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर से पढ़ रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। ओके, हमको लगता है लाइफ में कि हम मल्टीटास्कर है, कि मैं या एक साथ ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। ओके, यूट्यूब का वीडियो भी देख रहा हूँ, कुछ लिख भी रहा हूँ और किसी का सुन भी रहा हूँ, किसी से बात भी कर रहा हूँ, राइट।
हम लोग को लगता है कि हम कितने मल्टीटास्किंग करते हैं, राइट, हम कितने टैलेंटेड है, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको एक टास्क के ऊपर ही फोकस करना होता है लाइफ में। ओके, तो ये बुक के अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। यस, मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, ये भी अच्छा बुक है। द मैजिक, रोंडा बायन जो सीक्रेट वाली ऑथर है, उनका ये बुक है। ओके, द मैजिक, यस। वैसे ही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये लास्ट वीक मैंने खत्म किया बुक। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर बढ़ा के आप कैसे लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, ये बुक के अंदर दिया है। ओके, कैसे आप अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट कर सकते हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आप आपके माइंड में जो होता है वही आपके लाइफ में सामने दिखता है आपको। ओके, आज आपके जो माइंड में है वही आपको कुछ दिनों बाद दिखने वाला है। ओके, तो ये उसका पीछे साइंस क्या है वो ये बुक में अंदर अच्छे तरीके से दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दिया है। ओके, देन सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ये बुक नेटवर्क मार्केटर्स के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें दिया गया है कि कोई सवाल पूछे तो उसको क्या आंसर किया जाए या फिर क्या सवाल पूछा जाए। ओके, ट्रेडिशनल वे में जो मार्केटिंग करते हैं ऑफलाइन में, उनके लिए भी बहुत अच्छा बुक है ये, ऑनलाइन के लिए भी अच्छा है ये। ओके, ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड देन ये बहुत सारे बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल है, जैसे एटॉमिक हैबिट्स आप देख पा रहे हो, हिंदी में अवेलेबल है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स है जो मतलब पर्सनली भी मैं पढ़ता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ, राइट। लेकिन ये कुछ बुक्स है आपको स्टार्ट करना है नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, तो दीज आर वेरी गुड बुक्स, आप स्टार्ट कर सकते हो इससे। यस, यस गाइस, स्लाइड जिनको देखना है 5 बुक्स का स्लाइड्स, तो आप ये देख सकते हो, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ओके, यस, ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने। यस गाइस, आप अपने टीम में अभी आई थिंक बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी बुक पढ़ रहे हैं करंटली, और अगर कोई शेयर करना चाहेगा कि हाँ भाई मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और बुक पढ़ने से मुझे क्या सीखने मिला, क्या मतलब लाइफ में चेंजेस हुए, तो वो शेयर हैंड रेस कर सकते हैं अभी पहले। ओके, देन हम Q&A लेंगे। ओके, कोई है ऐसा जो बुक पढ़ रहा है? आई थिंक मैंने अपनी टीम में पूछा तो बहुत लोगों ने बोला कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो ये मज़ा आ रहा है। यस, नेहा कुमारी जी बताइए। यस, नेहा जी बताइए। हेलो। यस, हेलो। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मैंने एक बुक पढ़ा, वो रिच डैड एक पुअर डैड, यस, यस, बुक अभी बिल्कुल। अवेलेबल है। हम्म, उसमें मतलब कि उन्होंने जो बताया है ना कि था वो वाला, मेरे को मतलब पढ़िए, हम्म, पूरा पढ़ी हो। और एक बार मैंने उसका ऑडियो बुक भी सुना है, तो हम्म, उसको देखने के बाद ना तो मेरे को लगा 2-3 साल से मेरे को लग रहा है कि छोड़ ही नहीं। हम्म, पहले नहीं पढ़ी थी ना बुक, तो लग रहा था हम्म, ये क्या कर रही हो फॉरएवर, क्या हम्म, कर रही हो हम्म, फालतू में। लेकिन जब से वो बुक पढ़ी हो ना तो नहीं, अब तो छोड़ना ही नहीं है, अब कुछ भी हो जाए। यस, ऐसा उसमें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का उसमें भी सर ने बताया है कि आप पैसे हम्म, को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो ज्यादा जरूरी है, पैसिव इनकम। और उन्होंने जो बताया है उसमें वो तो हम्म, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और दूसरा बिल्कुल। बुक था एक था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यस, यस, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है वो। यस, सही है। वो बुक तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी थी, और हम्म, मैंने जो 30 वीडियो कॉन्टेस्ट जीता उसमें भी हम्म, मैम ने दिया था वो बुक। हम्म, उसमें भी जो बताया ग्रेट। था कि 1% जो पैसा रहता है ना उसको हम्म, आपको सेव करना होता है। हम्म, उनका वो उसमें था बुक में। बिल्कुल, बिल्कुल। और और एक है, कौन सा बुक मैंने पढ़ा था याद नहीं आ रहा अभी, हम्म, जिसके बारे में अभी आपने एक उस बुक का नाम लिया था, द हम्म, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस के माइंड, बारे यस, में। बिल्कुल। हम्म, वो बुक के बारे में मैंने पढ़ा हम्म, था, उसमें भी हम्म, मतलब कि माइंड को लेके कैसे कैसे हम्म, पूरा मतलब माइंडसेट के रिगार्डिंग ना बहुत अच्छा, मतलब वो ज्यादा यस, पूरा नहीं पढ़ा है, 8-10 पेज ही पढ़े हैं उसके। हम्म, पर लग रहा था कि और इंटरेस्टिंग और यस, इंटरेस्ट लग रहा था कि नहीं आगे भी पढ़ना चाहिए, आगे भी पढ़ना चाहिए। हम्म, एक ये बुक था, फिर मैंने वो भी पढ़ा, सवाल ही जवाब है। उसमें यस, भी बिल्कुल। स्टोरी कर करके हम्म, उन्होंने बताया कि एक उसमें मैनेजर रहता है, वो सब सर्च करते यस, रहता है कि कौन सबसे अच्छा है, लीडर हम्म, है, ऐसे ऐसे करके वो बुक है। राइट, राइट, तो वो अच्छा लगा था वो। एक बिल्कुल, बुक, और बिल्कुल। एक और बुक हम्म, है आपकी जीत, आपकी जीत जीत एक है शिव खेरा की। शिव खेरा। हम्म, हाँ, तो वो बुक तो है अभी, लेकिन मैंने टाइम नहीं मिल पाता है, दो बच्चे भी हम्म, है तो छोटा छोटा यस, यस, थोड़ा बहुत वो पढ़ती हूँ, फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है, बिल्कुल, इसलिए ये बोल रहता है। राइट, राइट, बिल्कुल। तो वही आपको जो मैंने चैट जीपीटी में दिखा है कि टाइम कब निकालना है, तो टाइम निकालिए।
रोज टाइम निकालने आपको और मजा आएगा बुक पढ़ने में। आपकी जो बुक रह गई है हाफ पढ़ के तो उसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे होता है क्या ना, हम्म, बच्चे मेरे कुछ ज्यादा ही छोटे हैं सर अभी। हाँ हाँ। ऐसे मतलब दो, मतलब हम्म, है कि अगर मैं 4:30 बजे भी हम्म। उठूँ ना तो वो भी 4:30 बजे ही उठ जाते हैं। अच्छा। तो मैं हम्म, कोशिश कर रही हूँ कि कितना जल्दी अगर अच्छे से कर लूँ तो हो जाए। यस बिल्कुल, तो जब वो सोए पर तब ट्राई कर टाइम सकते हो बुक निकालूंगी पढ़ने का आप। सेल्फ यस। ग्रोथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस हाँ हाँ। एग्जैक्टली, तो वही आपने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े हैं। थैंक यू सर। सभी बुक्स इंटरेस्टिंग है। ये द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, ये बुक मैंने भी पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है वो। ये बुक आप पढ़ोगे तो आपको मतलब जो आप इनकम कर रहे हो उसको भी सेव करके आप कैसे और इनकम कर सकते हो उस बुक में बताया गया है, और वो भी स्टोरी का रूप में है। तो अगर किसी को पढ़ना है ये बुक भी पढ़ हाँ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और छोटा सा बुक है वो, कोई ज़्यादा मोटा बुक भी हाँ। नहीं है। राइट, बहुत लोग को डर लगता है कि यार इतना मोटा बुक कौन पढ़ेगा, राइट, तो बहुत छोटा बुक है वो, बहुत इंटरेस्टिंग है बुक वो, तो वो भी आप ले सकते हो। यस और मैं एक ये भी है द सीक्रेट वाला भी, मतलब यस बुक यस नहीं बिल्कुल। पढ़ी हूँ उसका, हम्म लेकिन 2 से 3 बार की वो देखी हूँ, वीडियो हाँ। मूवी जो है उसका। यस यस वीडियो हाँ, एग्जैक्टली राइट। वो फिर मैंने ट्राई भी किया विजन बोर्ड बनाने का। हम्म फिर बोल क्या ये नहीं वो नहीं, फिर लेकिन लग रहा था, फिर मैंने मोबाइल का वॉलपेपर बनाया हम्म विजन बोर्ड का, पहले का था अभी भी हाँ फिर मैंने हटाया तो फिर कुछ और कर दिया कि हम्म नहीं, उसमें विजन बोर्ड का सुपरवाइजर लिख के इतना सीसी इतना डेट करके हाँ और क्या क्या आपके विजन्स है उसका हम्म मैं अलग से ये बना करके एक हम्म कैलेंडर लगाया था। पर वही हो जाता है सर, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक यस हो ही वही जाती अपने को मेन है, कंसिस्टेंट रखना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके रहना है। ओके। है। ओके। ये थैंक यू द सर। सीक्रेट की बात करें तो आपने जैसे द सीक्रेट का नाम लिया ही है, तो गाइस द सीक्रेट एक ऐसा बुक है, या फिर मूवी भी बात करो तो लोग बार 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 पढ़ते हैं वो, बार 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 वीडियो भी देखते हैं उसका। यस बिल्कुल पूजा जी, आप जो दिखा रहे हो जादू, यस द मैजिक बुक है वो, राइट। यस द मैजिक बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी आप मतलब आप जब पढ़ोगे आपको मजा आएगा कि हाँ भाई द मैजिक बुक भी कितना मतलब इंटरेस्टिंग है। वो भी सेम ऑथर का ही है। ये बुक्स आप जब बार बार पढ़ोगे तो आपको मतलब लाइफ में ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ओके। तो यस मैं 2 दिन पहले किसी का देख रहा था पॉडकास्ट, तो वो पूरा लॉ अट्रैक्शन के ऊपर ही था। तो वो पर्सन बता रहे थे कि मैंने 1.5-2 साल तक द सीक्रेट का जो वीडियो है 1.5 घंटे वाला, हर संडे को मैंने बिना भूले देखा है, हर संडे को। ओके, वो जो पॉडकास्टर है वो बता रहे थे। ओके, तो इतना इंटरेस्टिंग वो द सीक्रेट है, आपको अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो देखिए, और भी हम 3 बार देखा तो और भी उसमें ऐड कीजिए। यस यस थैंक यू नेहा जी। यस गाइस, अब मैं कुछ शेयर करता हूँ आपसे, इन्होंने यस अभी इन्होंने कहा था विजन बोर्ड के बारे में, तो द सीक्रेट बुक पढ़ के विजन बोर्ड का ट्राई किया, तो विजन बोर्ड मतलब ट्राई किया, राइट। तो आपने कंप्लीट किया कि नहीं, आप बताइए। ओके, कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको मैं शेयर करता हूँ कुछ एग्जांपल अभी, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि विजन बोर्ड बनाना भी कितना यूजफुल है। गाइस स्क्रीन देख पा रहे हो आप? गाइस स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये जो है ये मेरे पुराने टीम का जो है, जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे थे, तो वो टीम में काम करने का तरीका था कि विजन बोर्ड बनाओ। तो ये मेरा विजन बोर्ड है। आप में ये प्रॉपर लिख के थे वो कि हाँ भाई ये जब मैंने ज्वाइन किया वो महीना है, महीना और ईयर। ये अभी दिख नहीं रहा है क्लियर फोटो मेरा, ये बस यही बचा है अभी। विजन बोर्ड तो बचा नहीं, लेकिन ये बचा है मेरे फोटो, ओके उसका। तो ये महीना वो है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा क्या क्या गोल है। ओके, कब मुझे घर लेना है, कब मुझे गाड़ी लेनी है, कब मुझे हॉस्पिटल बनवाना है, कब मुझे स्कूल बनवाना है, क्या क्या लिखना है आपको, बड़े बड़े जो भी आपके बड़े बड़े गोल्स है सब यहाँ पे लिखो, उसका लिस्ट बनाओ प्रॉपर। ओके, तो वो कंपनी में कौन से लेवल पे आप होंगे उसका भी लिस्ट बनाओ। तो ये प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में बनाना बोलता था वो। ओके, उसके बाद आपके जो भी गोल्स है उसका भी आप फोटो लगा के आप डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये मतलब मैंने कुछ अपने तरीके से फर्स्ट टाइम बना रहा था मैं विजन बोर्ड, तो ये मेरा विजन बोर्ड है, उस टाइम मैंने बनाया था। ओके, तो ये है उसका फोटो, जो फोटो मेरे पास है अभी। ओके, तो गाइज ये विजन बोर्ड में टोटल 15 चीज़ें हैं, 15। ओके, इसमें टोटल 15 आइटम्स है, 15। ओके, प्रॉपर घर है, बाइक है, कार है, घर बाकी सब कुछ है, इंटीरियर वगैरह वो सब है। ओके, 15 में से जब मैंने विजन बोर्ड देखा 2-3 साल बाद, 13 चीज़ें मेरी हो गई थी। आउट ऑफ 15, 13 चीज़ें मैं अचीव कर चुका था। तो गाइज ये पॉसिबल है विजन बोर्ड से। ओके, तो अभी जिन्होंने कहा विजन बोर्ड उनका बनाना बाकी है, तो आपको मैं कहूँगा लाइक ज़रूर बनाइए आप। ओके, क्योंकि ये काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काम करता है, और फॉर श्योर आपके लिए भी काम करेगा ही करेगा। यस यस पूजा जी बताइए। ये सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं यही कह रही थी कि बुक्स रीडिंग करना तो बहुत ज्यादा मतलब
फैंटास्टिक लगता ही है ना। बुक रीडिंग एक एक्टिविटी बन जाती है ना, तो वो बहुत यस अच्छा लाइफ में रोल करने लगता है, काम करने लगता है। तो मैंने यस कई सारी पढ़ी भी हैं, और हम्म अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारी बुक है। द हम्म मैजिक है सीक्रेट, हम्म और ये वाली बुक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। हम्म मास्टर योर थॉट मास्टर लाइफ, ये वाली है। ओके सही है इसके अलावा भी मेरे पास थिंक एंड ग्रो रिच है, और परफेक्ट रिच डैड पुअर डैड, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ग्रेट ग्रेट और परफेक्ट ये है द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंडसेट। तो हम्म अभी ये सारी बुक्स आधी आधी कंप्लीट हो गई है, मैं हम्म दोबारा से इसको दोबारा कंप्लीट कर रही हूँ। सर, हम्म मैं पता है कोई भी बुक खरीदती हूँ ना, तो वो कंप्लीट तो नहीं हो पाती, लेकिन मुझे बुक परचेज करना बहुत पसंद है। सेम सेम और जिस किसी बुक की ऐड देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बुक मैं परचेज कर लूंगी, रखा रहेगा सीरियसली तो कभी ना कभी तो पढ़ूंगी। तो ये बिल्कुल चीज बिल्कुल बहुत एक्टिव देता है लाइफ में। और हम्म एक लगता है ना कि जो वर्क है उसका एक प्रोसेस है, एक ये पार्ट हम्म है, तो हम्म करना ही करना। और सच में बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीजें आइडियाज मिलती रहती है कि यस कैसे कैसे कुछ होता है। तो यही बिल्कुल कहना। बिल्कुल सेम सेम मेरा भी ऐसे ही होता है कि कोई बुक लो तो अगला मन करता है ले लूँ बुक वो, और बुक लेता हूँ तो बुक वही का हाँ। वही रहता है, वो आधा बुक पढ़ता हूँ तो वही रहता है, राइट। तो अभी मैंने हम्म। चालू किया कि जो बुक हाथ में लूँ वो खत्म किया बिना दूसरा बुक लो ही ना हाथ में, वैसा है। तो हाँ। ये रखा है, और अभी तो इतना हो गया है कि बुक्स के लिए जगह नहीं है, तो नया बुक लाने के लिए मतलब कि पुराना कौन सा बुक निकालूं मैं, तो वैसा हो रहा है। तो यस बहुत ही अच्छा, मतलब आपको बोल सकते हैं पागलपन है, ओके, बुक्स पढ़ने का, तो ये हम्म। आपको आगे लेके जाएगा। देखो आपको लाइफ में को अचीव कुछ करना है तो पागलपन जरूरी है, ओके। yes, तो बुक्स के लिए पागलपन, पढ़ने के लिए पागलपन जो है ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, राइट, आपका क्वालिटी है। यस वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। यस देवांश भाई बताइए। हाँ यस अनम्यूट यस। हेलो प्रतीक सर एंड हेलो एवरीवन। तो यस सर मैंने जो बुक पढ़ी हुई है अभी कंप्लीट तो नहीं हो पाई है, गुड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। गुड बिकॉज सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि देखिए सर, जब फर्स्टली मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ हम्म तो अच्छा सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम्म मैं प्रोफेशनल रिलेशंस काफी अच्छे बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं है उसमें। लेकिन सर जब पर्सनल रिलेशंस बनाने की बात होती है, बहुत ज्यादा हम्म डीप रिलेशंस बनाने की बात होती है, हम्म तो वहां पर मैं बार बार जैसे है फॉर एग्जाम्पल फेल कर जाता हूँ। तो हम्म उसके लिए मैंने सोचा कि चलो इस बुक को, क्योंकि इस बुक का नाम इससे रिलेटेड है, हाउ टू यस विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, विन फ्रेंड्स, यस यस राइट। बिल्कुल तो यस मैंने धीरे धीरे उस बुक को पढ़ना चालू किया, और उससे हम्म मेरी ये लर्निंग एक आई है कि देखिए सर, ज्यादातर जो पर्सन होते हैं वो अपने बारे में बात करना चाहते हैं। यस तो एग्जैक्टली जब जब उन अगर आप उनको देखिए, कम्युनिकेशन के दो वेज होते हैं, हम्म एक होता है स्पीकिंग और एक होता है एक्टिव लिसनिंग। यस तो अगर बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग के लिए उसको अपने को आप दोगे तो हम्म आपसे वो काफी ज्यादा मतलब एक कनेक्शन बिल्ड होगा, हम्म और जिसकी वजह से जो है अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली मैंने लर्न जी। यस यस बिल्कुल बहुत अच्छा बुक है वो। बुक में एग्जांपल है, मतलब जो मुझे याद है, तो बुक में ऑथर जब जाते हैं पार्टी में, एक तो पार्टी में जो किसी से मिलते हैं वो, और जो पर्सन है वो सामने से खुद ही बोलते रहता है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, मेरा उस दिन वो ये हुआ ये हुआ वो हुआ। ऑथर ने बस हार्डली एक दो शब्द ही बोला होता है मीटिंग के एंड तक, लेकिन एंड में वो पर्सन जाते रहते बोलते हैं कि सर आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया, ऐसा मुझे किसी से हाथ लगा नहीं लेकिन आपके साथ बहुत मज़ा आया बहुत। तो ये एग्जांपल आपको सिखाता है कि गाइस आप जब फ़ोन पे किसी से बात करो तो उसको भी बोलने का मौका दो, उसकी जो भी कहानी है सुनो आप, उसको लगे कि हाँ भाई आपसे बात करके मज़ा आया। भले ही आपने दो चार शब्द ही बोले होंगे, लेकिन उसको पूरा सुनो तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई मतलब वो जिस तरह समझेगा कि हाँ भाई आपने मौका दिया बोलने का, तो मतलब आप मतलब आपने आपने में क्वालिटी है। तो ये अच्छा जैसे एग्जाम्पल वो बुक में है, राइट। बहुत जैसे इंटरेस्टिंग सर बुक है। जैसे सर हमारे जो अपलायंस होते हैं वो क्या हम्म कहते हैं हम्म, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मत बताओ, मत बताओ उनसे खुद ही सेल्फ क्वेश्चन पूछो, यस जिससे कि उनको और क्लियरिटी मिलेगी और उसके हम्म बाद वो इजिली ज्वाइन करेंगे। यस बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ओके, अच्छी बुक थैंक है। यू सर यस यस एंड वेलकम। एवरीवन। ओके, यस थैंक यू। यस वेलकम यस। हाँ यस अजीत जी आप बताइए। ओके थैंक्स। यस गुड इवनिंग। जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आया हम्म तब से किताब पढ़ने का हमारा सौभाग्य हुआ। यस मैंने सवाली जवाब पढ़ लिया, हम्म लक्ष्य, बड़ा शास्त्री, बड़ा जादू, हम्म तो ऐसा बहुत सारा किताब मेरा पास है। हम्म तो एक एक करके मैंने पढ़ लिया, फिर यस दोबारा पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा पढ़ने का शौक है, एग्जैक्टली तो इसमें बहुत नॉलेज मिलता है। एग्जैक्टली वही जो लेखक है उनका पूरा सारा यस लाइफ का निचोड़ एग्जैक्टली वहां से
एग्जैक्टली। ये मेरे लिए यस। मतलब 1 हफ्ते में और 2 हफ्तों में पूरा यस। नॉलेज आ जाता है। एग्जैक्टली। वेरी गुड आइडिया। थैंक बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, थैंक यू अजित जी। तो ये पॉइंट मैं बोलना भूल गया था एक्सप्लेन का, आपने जो अच्छा पॉइंट फिर से याद दिलाया मुझे, कि आप जब कोई भी एक बुक पढ़ते हो तो वो ऑथर के पूरे लाइफ का आप एक्सपीरियंस लेते हो। यू। यस। तो जो आप गलती फ्यूचर में कभी करने वाले भी होते हो तो आपको आइडिया आता है कि हाँ भाई ऑथर ने ये सिखाया था तो चलो ये ऐसे करते हैं, राइट। तो आपको सीखने मिलता है, पूरे उसका लाइफ का निचोड़ मिलता है आपको, आप वो बुक पढ़ने से। जैसे हमने वीडियो देखा, शॉर्ट देखा था कि हाँ भाई एक तो करने से सीखो या फिर पढ़ के सीखो। जब पढ़ के सीखोगे आप, तो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा कि हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यस बिल्कुल अजीत जी, आपके पास जो भी बुक्स है आप बार बार जब पढ़ते हो, तो मैं फिर से कहूँगा ये मतलब मेरे एक मेंटर ने कहा है बहुत बार कि आप एक बुक जब बार बार पढ़ते हो तो बुक तो वही रहती है, लेकिन आप एज अ पर्सन बदलते हो। माइंड यस। फ्रेश हो जाता माइंड कीप्स ऑन चेंजिंग, एग्जैक्टली। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये। यस। यस, थैंक यू वेरी मच अजीत जी। यस। यस रिया जी, आप बताइए। यस। हेलो सर। हेलो यस। एवरीवन। हम्म। सर मैं एक्चुअली अभी अभी मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया है। ये हम्म। 2 बुक में कंप्लीट हुई है, जीत आपकी, और ये एक हम्म। सबसे काफी अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता, हम्म। है ना। हम्म। ये वाली जो एक बुक है सुरेंद्र, बाय सुरेंद्र वत्स, ये यस। दोनों बुक में कंप्लीट हो गई। और अभी रिसेंटली फिर से मैंने डिसाइड किया है कि एवरीडे 10 to 15 मिनट्स तो मुझे करना ही यस। है ना। आई थिंक भले अभी लेट, इट्स नेवर टू लेट, मैं अभी भी स्टार्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल। रिसेंटली मैंने और काफी सारी बुक्स ऑर्डर की है, नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग की, जूडो और हम्म। जीतो वाली, हम्म। एंड एटॉमिक हैबिट्स एटॉमिक हैबिट्स, यस। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सारी यस। बुक्स मैंने मंगाई है और मैं हम्म। डेफिनेटली इसे कंप्लीट करूंगी। यस। 10 10 मिनट एवरीडे यदि मैं रीड करूंगी तो हो जाएगा डेफिनेटली। ऐसे ही मैं इंक्रीज करते जाऊंगी, और बिल्कुल कभी बिल्कुल। मैं रिव्यू भी मैं जरूर शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सो सभी हम वेट करेंगे आपका यूट्यूब वीडियो आने के लिए रिगार्डिंग बुक्स, ओके। यस, आप 4-5 साल बाद सोचोगे कि ये जो आदत डाला मैंने खुद के लिए, ये मुझे कहाँ से कहाँ लेके आया है। ओके। यस सर। ये आप सोचोगे और मुझे बताओगे भी, ठीक है। यस। यस। और गाइज थैंक यू। यस यस, वेलकम वेलकम। और गाइज आई थिंक खुद लोग चैट में लिख रहे थे कि पीडीएफ बुक पढ़े क्या, या फिर ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मिलती है वो पढ़े क्या। गाइज पीडीएफ पढ़ने में वो मज़ा नहीं है जो आपको हार्ड कॉपी पढ़ने में है। ओके। तो अगर पॉसिबल है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग हार्ड कॉपी में ध्यान दें। ओके। हार्ड कॉपी जो है वो आप ले। ओके। क्योंकि बुक का जब हार्ड कॉपी हाथ में रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी भी मिलता है और प्रॉपर पढ़ने का तरीका भी होती है, वो भी आप सीख सकते हो यूट्यूब पर। ओके। बहुत सारे कम्युनिटीज़ भी है जिसमें बुक पढ़ने का मतलब कैसे फास्ट पढ़ सकते हैं, कैसे क्या पढ़ सकते हैं वो सिखाते हैं। मेमोरी डेवलप कैसे होता है वो भी सिखाते हैं। ओके। लेकिन हार्ड कॉपी आप यूज़ करिए। ओके। तो वो पढ़ने में और मज़ा है। यस, हमेशा है। हम्म। और गाइस अभी जाते थे आपको और एक कहता हूँ मैं, और एक आइडिया। यस, ऑडियो बुक मतलब अगर कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट, आपको बस टाइम नहीं मिल रहा है, आपको कुछ भी, राइट, बुक पढ़ना मुश्किल ही है, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ऑडियो बुक आप सुन सकते हो। बहुत लोग ऑडियो बुक भी सुनते हैं। ओके। तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑडियो बुक्स ने भी बहुत अच्छा खासा मार्केट ले लिया है अभी, कि हाँ भाई ऑडियो बुक्स भी आजकल अवेलेबल है अच्छे खासे। ओके। वो ले सकते हो, लेकिन फिर कहूँगा कि हाँ भाई पढ़ने से ज़्यादा मज़ा उसमें नहीं है। ओके। सबसे ज़्यादा मज़ा जो है, जैसे ज़्यादा आप सीख सकते हो वो है पढ़ने से ही है, वो भी हार्ड कॉपी बुक पढ़ने वाला, उसके बाद ऑडियो बुक, उसके बाद पीडीएफ। ओके। आपको अगर लग रहा है कि पीडीएफ ही आपको पॉसिबल है तो पीडीएफ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कई जगह आते हैं जैसे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए खुद, राइट। यस, बहुत सारे बुक्स हिंदी में अवेलेबल भी होती है। ओके। तो गाइज लास्ट पॉइंट मुझे आपका शेयर करना था कि आप अलॉन्ग विद बुक रीडिंग जो है, आप जो टाइम स्पेंड करते हो इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में, यूट्यूब स्क्रोलिंग में, जो मैं भी करता हूँ यूजुअली, राइट, पॉडकास्ट देखिए आप। ओके। इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आज के डेट में आते हैं। ओके। 1.5 घंटे का पॉडकास्ट, 1 घंटे का पॉडकास्ट, राइट, जो ऑथर सामने बैठता है और सवाल जो सवाल भी पूछते हैं लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। वो पॉडकास्ट सुन देख के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके। तो पॉडकास्ट देने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं कि हाँ भाई कौन से ऑथर होते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे लीडर होते हैं, वो तो अपना लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि हाँ भाई कैसे क्या किया जाए। तो आप पॉडकास्ट पर भी आदत डालिए कि हाँ भाई ये पॉडकास्ट मैंने खत्म किया, वो पॉडकास्ट खत्म किया, वो भी आप शेयर कर सकते हो कभी वीडियोज़ में। ओके। क्योंकि आप एज ए पर्सन ग्रो करोगे तो ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो ही आप लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रो होगे। ओके। यस। यस गाइस, तो यही था आज के मीटिंग के लिए। ओके। तो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए ग्रुप में कि आप कौन सा बुक पढ़ने का प्लान कर रहे हो। बुक का नाम के साथ आप आज आज कमेंट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज मैं कल से ये बुक पढ़ूंगा, कल से ये बुक पढ़ूंगी। ओके। तो और अच्छा लगेगा, और आप ये हैबिट जो है अपने लाइफ में डालिए। ओके। क्योंकि इससे आपको सबको फ़ायदा होने वाला है। यस। यस।
थैंक यू ऑल, गुड नाइट फॉर नाउ।